also occurred in the west flowing rivers such as Tapi, Narmada and Daman and Tapati. तो आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि फ्लड फोरकास्टिंग में जो कन्वेंशनल मेथड है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बिकॉज जैसा कि मॉडरेशन ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग जो टेक्निक्स चल रही है इसमें हम लोग कई तरह की नए नए मॉडल्स मेथड्स यूज़ करते हैं सच एस माइक 11 है HRS इनका मॉडल हम यूज़ करके फोरकास्टिंग इशूज करते हैं इसमें कन्वेंशनल मेथड किस तरह से हेल्प कर सकता है वो भी उस जगह जहाँ पर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होती है इन सभी से मिलता जुलता एक छोटा सा हमारा टाइम पीरियड रखेगा जिसमें आपको किसी भी तरह का इशू हो तो आप बीच में कभी भी पूछ सकते हैं तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। दर्शन 2490। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ, यस सर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Yes, yes, sir. So today's my topic is importance of conventional method in river basin where travel time for flood forecasting is less. A case study on Rapti, Tapi and Damanganga river basin. So first, what is flood? As we all know that a flood is relatively high stage of the river, which is usually accompanied by overlapping of the natural bank of the river in a particular region. Flood is natural phenomena. It cause heavy loss and disrupt normal life, and so many factors are involving here. The floodplains in India were subjected to inundation or death. So flooding may be caused by a number of natural, physical, and human factors, such as causes of flooding, that means meteorological factor, catchment shape, land use, attempt and attempt at managements, catchment size, drainage, state of ground, vegetation, geology, and relief. Now we are going to causes of flooding पर। तो जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल और ह्यूमन दो टाइप के जो मेन इफेक्ट होंगे फ्लडिंग के। तो फिजिकल फैक्टर्स में तो स्नो मेल्ट, इंटेंस प्रेसिपिटेशन, स्टॉर्म सर्ज, प्रोलॉन्ग रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं। जबकि ह्यूमन कॉजेज में चेंज इन क्लाइमेट, चेंज इन लैंड यूज, पॉवर्टी, इंक्रीज अर्बनाइजेशन एंड पुअर डैम कंस्ट्रक्शन शामिल है। River floods are caused due to heavy and widespread precipitation in and around catchment, runoff in excess of conveyance capacity, drainage congestion, deforestation, tidal waves effect, and global climate change. Also, factor influencing flood is that intensity and duration of rainfall. That is the most important factor to influencing flood. Now, the flood problem in India. The geographical area of India is 329 million hectare. Total flood prone area as assessed by National Flood Commission of India, 14 million hectare, are reported by the state to the Working Group in Flood Control Program for 10th 5-year plans is 45.65 million hectare. The major flood prone states are Assam, Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Odisha, and Andhra Pradesh. Other major floodplain prone basins are Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, and Godavari. In this map, we are clearly find out the path of floods. That is the most rivers flowing from north to eastwards are causes of flooding, such as Yamuna, Ganga, Ghagra, Gandak, Kosi, Brahmaputra. Uh, some parts of west portion is flooded by west flowing rivers. Major rivers are Mahi, Tapi, Narmada. In India, Uttar Pradesh are highly affected by floods. All over the 21.90%.
of the country. So, flood management is the most important for reducing the flood activity. इसमें हमारे पास दो तरह के मेजर्स होते हैं. फर्स्ट मेजर्स होगा स्ट्रक्चरल मेजर्स, दूसरा होगा नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स. स्ट्रक्चरल मेजर और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में दो काफ़ी बड़े डिफरेंस हैं. स्ट्रक्चरल मेजर जो होगा वो एक्चुअली वो फिजिकल प्रोसेस ऑफ फ्लडिंग को रोकेगा. इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पर आप कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे जो कि पर्टिकुलर एक लॉन्ग पीरियड का टाइम लेगा. वहीं नॉन स्ट्रक्चरल जो मेजर होंगे उसमें आपको इतना समय नहीं लगेगा और ड्यूरिंग द 6 to 1 years के अंदर आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं. यहाँ पर दोनों में एक इशू, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रक्चरल मेजर इकोनॉमिकली रूप से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जबकि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है. किसी एरिया में अगर फ्लडिंग की कंडीशन स्टार्ट हो रही है और वहाँ पर अगर हम सोचें कि पहले कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाएँ फिर उसे प्रोटेक्ट करें, उससे बेटर होगा कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर के थ्रू हम सडनली उस जगह पर कुछ हेल्प कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चरल मेजर्स जो होंगे उसमें पहला आएगा एम्बैकमेंट, लेवी फ्लड वॉल्स, डाइवर्शन फ्लड ऑफ वाटर, dams and reservoirs, drainage improvement works and construction of cutout. Then non-structural measures में important चीज़ है flood forecast and warning, flood plain zoning, flood proofing, disaster preparedness and response planning. फ्लड प्लेन जोन में हम रिवर बेसिन, रिवर हमारा जो रिवर होगा, रिवर के आसपास सराउंडिंग एरिया को पर्टिकुलर अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर एक आइडिया दिया हुआ है कि हम किस तरह से किन जोनों में हमारी रिवर बेड को बांट सकते हैं. अलग अलग एरिया अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ये जोन अलग अलग हो सकते हैं. फ्लड प्रूफिंग के लिए हम लोग रिवर के साइड में सैंडबैग डाइक्स डेवलप कर सकते हैं. Now, floods are an annual feature in one of other parts of India, causing enormous damage to crops, property, as well as loss of human and cattle lives. The magnitude and duration of flood varies from region to region. Now, the Central Water Commission is playing a key role in this endeavor by issuing river level and inflow forecast and warning in most of interstate river of the country. Flood forecasting is also one of the most challenging and difficult problem in hydrology. However, it is also one of the most important in hydrology due to its critical contribution in reducing economic and life loss. In many regions of the world, flood forecast is one among a few feasible options to manage floods. Reliability of forecast has increased in the recent year due to the integration of meteorological and hydrological model capabilities, improvement in data collection through satellite observation, and advancement in knowledge and algorithm for analysis and communication of uncertainties. इंडिया फ्लड जोन में पहले मैं आपको बता चुका हूँ. यहाँ पर हमारी जो मेजर रिवर्स हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, नॉर्थ वेस्ट रिवर बेसिन एंड सेंट्रल इंडिया बेसिन. तो CWC ने जो पर्टिकुलरली इंडिया में जो फ्लड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें 4 सेपरेट रीजन्स में बांट दिया है. फर्स्ट पार्ट इज ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, सेकंड गंगा रिवर बेसिन, थर्ड नॉर्थ वेस्ट रिवर बेसिन एंड फोर्थ इज सेंट्रल इंडियन एंड डेक्कन रीजन. So first, need for flood forecast. Flood forecast warning of approaching flood provides sufficient time for the authorities to evacuate and affected people to the safer places, to make an intense patrolling of the flood protection work such as embankment so as to save them from breaches, failures, etc. To regulate the flood through the barrage and reservoirs so that the safety of these structures can be taken care of against the higher return period flood. Now, Central Water Commission under the Ministry of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation has been listed as the nodal organization for flood forecasting in the country.
by the Ministry of Home Affairs, National Disaster Management Authorities. Presently, there are 226 flood forecasting stations consisting of 166 level forecasting stations for village and town and 60 inflow forecasting stations for reservoir, dam, barrage in the country. Out of 226 flood forecasting stations, 166 FF stations have been modernized so far with automatic data collection and satellite-based transmissions. Existing flood forecast network covers 22 states, union territory, and 19 major rivers basins and sub-basin in the country. Now this is the slightly development year-wise. So we are starting 1951, only one station, that is the railway bridge Yamuna at Delhi. And 2018 is a 226 stations. Now 2020 the stations are updating and covering 329 stations in all over the India. This is the state-wise distribution of plus forecasting stations. पर्टिकुलरली जो नंबर ऑफ फोरकास्टिंग स्टेशन वो बताते हैं कि किस एरिया में फ्लड फोरकास्टिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे कि वेस्ट जोन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज़्यादा फ्लडिंग की कंडीशन आने के कारण वहाँ पर हमारे फ्लड फोरकास्ट स्टेशन ज़्यादा है। इसी तरह ईस्ट में, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो स्टेशन है फ्लड फोरकास्टिंग वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। Now this is the list of river basins. CWC FF सर्विस सेटअप, CWC में हमारा जो फ्लड फोरकास्टिंग होता है वो सेटअप, पहला एक हमारा होता है फ्लड कंट्रोल रूम, जहाँ पर हमारा फ्लड फोरकास्ट कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, डिसिमिनेशन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। यहाँ पर अब इस फिगर में आप देख सकते हैं, तो जैसे ही हमारा फ्लड फोरकास्ट सेंटर कंट्रोल रूम है, यहाँ से हमारे पास अलग अलग रिवर स्टेट डाटा, वेदर फोरकास्ट फ्रॉम IMD, रिवर डिस्चार्ज डाटा, रेनफॉल, ये हमारे कंट्रोल रूम में आता है, जहाँ से हम लोग फ्लड फोरकास्ट फॉर्मुलेट करते हैं। फ्लड फोरकास्ट फॉर्मुलेशन के बाद अलग अलग यूजर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, अपलोडिंग ऑन वेबसाइट्स, मीडिया, पुलिस एंड फ्लड कमिटीज, स्टेट गवर्नमेंट, CWC हेडक्वार्टर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, रेलवे, डिफेंस एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो फोरकास्ट पर्टिकुलरली जो यूजर एजेंसीज हैं उन्हें सर्कुलेट की जाती है विद इन द टाइम। नाउ फ्लड फोरकास्ट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है शॉर्ट रेंज फोरकास्ट। दिस मेथड कैन गिव एडवांस वार्निंग फॉर 12 to 24 hours for flood. Medium range forecast in advance warning for 2 to 5 days for flood, and long range forecast, this method can give advance warning more than 5 days. On the basis of category, forecast also distributed at particular frequency. Where major rivers travel time is more than 24 hours, forecasts are being formulated based on 8 hours to 9 hours daily water level data and forecast issued once in a day at 10 hours with advance warning time from 24 to 36 hours. In medium river, where travel time is 12 to 24 hours, forecasts are being formulated based on 6 hours and 18 hours water level data and issued twice in a day at 7 hours and 19 hours with advance warning time. Fleshy rivers, where travel time is less than 12 hours, forecasts are being formulated based on any hour's water level data and forecast issued multiple times
more than twice in a day with advance warning time less than 12 hours. For 20 divisions, about more than 6,000 forecasts are issued every year with an accuracy of more than 96%. So, anyone has any questions? अभी तक जो बताया इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Okay, now I will continue. So, different types of real-time flood forecast techniques and models have been suggested and used by many investors. These can be broadly classified into deterministic models, stochastic and statistical model, and more recently, artificial neural network and fuzzy logistic techniques. In India, the various flood forecast centers are using different forecasting models based on the availability of hydrological and hydrometeorological data based on basin characteristics, computational facilities available at the forecasting station, and warning time required and purpose of forecast. That means some commonly used method by various forecasting stations, including simple correlation, coaxial correlation based on state discharge and rainfall data, and a network model where the travel flow from different sub-basins are calculated using unit hydrograph approach and successive routing through different sub-reaches and carried out using river flood routing techniques and hydrological model at some selected places. So now Tapi, Damanganga and Narmada are occasionally in high flood affecting area in the lower reaches of Gujarat. So for flood forecasting, we have some data. The basically gauge discharge and rainfall data are required for flood forecasting purpose. The number of rain gauge stations in the basin should be such that the real rainfall in the catchment can be estimated with desired accuracy, and the variation in the areal distribution as well as the time distribution can be identified. So methodologies employed for issuing flood forecast are observation and collection hydrological and meteorological data. Now transmission communication of data to the forecasting center, analysis of data and formation of forecast, then dissemination of forecast and warning to the administrative and engineering authorities of the state. हेलो. Hi, yes, sir. हाँ दर्शन. इसमें अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक तो हम लोग स्टार्ट करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं फिर. Sir, maybe they will ask at the end of the session. ओके. So we can keep at the end of the session. They will write the question in the chat box. ओके. So we will discuss at the end one by one. ठीक है, तो फिर मैं कंटिन्यू स्टार्ट करता हूँ. Ha, ha. I request all the participants, if you have any kind of query or doubt, you can write the question in the chat box. At the end of the session, we will discuss one by one. तो आगे हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं राप्ती बेसिन. तो वेयर इज राप्ती बेसिन? Rapti Basin is the part of Ganga River Basin.
आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर राप्ती बेसिन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर मेन इशू क्या है, ये बाउंड्री है नेपाल कंट्री की, और इसके अप स्ट्रीम से जो रिवर्स आती है वो डायरेक्ट फ्लडिंग यहाँ पर लेकर आती है। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट और कन्वेंशनल मेथड के लिए बता रहा हूँ। इसमें एक ये केस स्टडी के बारे में ये था कि यहाँ पर सिचुएशंस आप खुद देख सकते हैं किस तरह की सिचुएशंस हैं। यहाँ पर एक हमारा साइट है काकरधारी साइट, और ये जस्ट जो येलो लाइन है ये हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसके अप स्ट्रीम में नेपाल है और डाउन स्ट्रीम में ये रिवर के डाउन स्ट्रीम में हमारा कंट्री है। और यहीं पर एक विलेज सिटी है छोटा जिसका नाम है काकरधारी। During the monsoon, heavy floods come in this city, and we don't have any data of Nepal side. So this is a major challenge for flood forecasting. अब इस पोर्शन में अगर हम किसी तरह का मॉडल माइक 11 हैक HRS वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कोई वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिकॉज ट्रेवल टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज वेरी लेस। So in this part we are using conventional methods, some to gauge and rainfall runoff model, because we have some rain gauge stations in Indian side and some rain gauge stations of Nepal side that Nepal government uploaded on their website. यहाँ कंटिन्यूसली रिवर का जो फ्लो आता है, आप देखिए पूरा हिली एरिया है। जब भी अगर थोड़ा भी बारिश होता है डायरेक्ट साइट पर आता है। ट्रेवल टाइम शॉर्टली 6 to 8 आवर्स रहता है हमारे लिए फोरकास्टिंग के लिए। यहाँ पर हम कई तरह के मॉडल्स हमने यूज़ किए हैं, लेकिन वो इतने सटीक वहाँ पर नहीं आ पाते हैं। जैसे कि ये हमारा फोरकास्ट है, सेम साइट पर जहाँ आप रेड रेड कलर से देख रहे हैं, ये हमारा मॉडल जनरेटेड फोरकास्ट है। जबकि कन्वेंशनल मेथड से यूज़ किया हुआ जो फोरकास्ट है वो येलो है, और जो एक्चुअल अराइविंग फोरकास्ट है वो ग्रीन है। तो मॉडल जनरेटेड फोरकास्ट और कन्वेंशनल मेथड से वो जो फोरकास्ट इशू किए गए हैं, दोनों में आप वेरिएशन देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा मॉडल जनरेटेड फोरकास्ट है वो एक्चुअल से काफ़ी दूर है, जबकि हमारा कन्वेंशनल मेथड से जो फोरकास्टिंग किया है वो ऑलमोस्ट पीक को कवर करता है। यहाँ पर भी वही है कि जो फोरकास्टिंग स्टेशन है हमारा, जो एक्चुअल फोरकास्ट और फोरकास्टेड वैल्यू, यहाँ पर भी काफ़ी वेरीड कर रहे हैं। ताप्ती रिवर बेसिन में ही है, राप्ती रिवर बेसिन में। यहाँ मेन इश्यूज वही जो आपको मैंने कहा, बाउंड्रीज इश्यूज है, इंटरनेशनल बाउंड्री प्रॉब्लम आने के कारण। इसके बाद थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। राप्ती के साथ हमारा रिवर आता है शारदा। यहाँ भी सेम इशू है। दिस इज द रिवर ऑफ करनाली फ्रॉम नेपाल साइड। ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, और बॉर्डर के जस्ट डाउन स्ट्रीम में बैराज है, बीके घाट बैराज। इसके लिए हमें फ्लड फोरकास्टिंग करना होता है। यहाँ भी सेम कंडीशंस है। इस एरिया में हमारे पास कोई मेजर रेन गेज स्टेशन, मेजर गेज स्टेशन और डिस्चार्ज स्टेशन नहीं है। जो भी फ्लो आता है डायरेक्टली नेपाल पोर्शन से आता है। बेसिकली द चीसा पानी इज प्लेस वेयर द रिवर करनाली
divided into two portions, and again it is joined in India at DK Ghat. ये मेजर इश्यूज है, क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन में भी हम किसी तरह का माइक्रोन मॉडल यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल्स के लिए हमें चाहिए होगा एक फोरकास्टेड रेनफॉल और ऑब्जर्व रेनफॉल। यहाँ पर हम ऑब्जर्व रेनफॉल स्टेशन का प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। ये इशू था हमारा राप्ती बेसिन पर। सेम इशू जो है हमारा वो है तापी बेसिन पर। जैसा कि आप साउथ गुजरात से हैं तो आप फैमिलियर होंगे मधुबन डैम से। ये आपका मधुबन डैम है सिलवासा में। यहाँ की आप कंडीशन अगर देखें, इस मैप में आप क्लियरली देख पाएँ तो आप ये रिजेस लाइन देख रहे हैं। ये जो लाइन है पूरा इस बेसिन को सेपरेट करता है। यहाँ पर रिवर का जो डायरेक्शन है फ्लो वो है आपका वेस्टवर्ड, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो है आपका ईस्टवर्ड डायरेक्शन। नाउ द प्रॉब्लम इन दिस दमनगंगा सब बेसिन इज दैट दमनगंगा basin receiving maximum rainfall. Average rainfall is 225 mm. Sorry, 2025 mm annual, and sometimes it is recorded more than 3000 mm. पूरा जो एरिया है ये सारा हिलॉक एरिया है, और जो भी रेनफॉल होता है सडन इफेक्ट आता है। अब बेसिन का कैचमेंट की बात किया जाए तो बेसिन का जो कैचमेंट है ओवरऑल कॉन्फ्रेंस तक नियर अबाउट 2200 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अगर सिर्फ दमनगंगा डैम मधुबन डैम तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका कैचमेंट सिर्फ 1800 स्क्वायर किलोमीटर है। अब 1800 स्क्वायर किलोमीटर में अब किसी भी तरह का रेन गेज डिस्चार्ज स्टेशन फोरकास्टिंग के लिए वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द फोरकास्ट टाइम हेवी रेनफॉल आल्सो अकर्ड इन द बेसिन। अब आपके पास 4 से 6 घंटे का ट्रैवल टाइम है, और उसी 4 से 6 घंटे के ट्रैवल टाइम में अगर आप मॉडल से फोरकास्ट देते हैं तो आप किसी तरह का उसमें कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल मेथड में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट तो वो रहेगा कि आपके पास जो भी डाटा है, जो भी आप इनपुट डाटा दे रहे हैं वो आपका डायरेक्ट डाटा है, ऑब्जर्व डाटा है, जिसमें किसी तरह कोई वेरिएशन नहीं है। सेकेंडली आपके पास उस बेसिन में उस समय जो कंडीशन चल रही है आप उससे फैमिलियर हैं, तो ये मॉडल उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि किस तरह की कंडीशन चल रही है। लेकिन अगर आप फोरकास्ट इशू करते हैं तब वहाँ पर आप जानते हैं कि बारिश किस तरह की हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, और आगे कब तक हो सकती है, ये भी आपको कुछ अंदाज़ा रहता है, क्योंकि ट्रेवल टाइम आपका सिर्फ 4 से 6 घंटे का है। मान लीजिए अगर इस पूरे रिजर्वायर में एवरेज 100 mm बारिश हो रही है, और वही बारिश अगर सिर्फ डैम पर अगर 100 mm है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा तो सीधे रिजर्वायर में। इसके बाद रिजर्वायर से जो रिलीज होती है वो रिलीज जाती है सीधे आपके वापी स्टेशन। तो जस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ मधुबन डैम a major city industrial area is वापी located। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन है। और अब यहाँ से मधुबन डैम से वापी तक का जो ट्रेवल टाइम है वो हार्डली 2 to 3 आवर्स है। 2 से 3 घंटे के लिए हमें यहाँ फोरकास्ट करना होता है। 2 से 3 घंटे के लिए अगर हम मॉडल को रन करेंगे तो पता चला कि हमारा आधा घंटा तो मॉडल रन होने में ही निकल जाएगा, और डाटा हमारा जो फ्लो होगा हमारा क्रॉस होना शुरू कर देगा। क्योंकि मधुबन वापी से जस्ट डाउन स्ट्रीम में हमारी एक अलग फोरकास्टिंग साइट है, वो है दमन। तो इस बेसिन में अगर हम देखें
तो दमनगंगा बेसिन में हमारे पास 3 फोरकास्टिंग स्टेशन आते हैं, मधुबन डैम, वापी और दमन, जहाँ पर इनका जो फोरकास्ट टाइम पीरियड है काफ़ी लेस है। ये आपका मधुबन डैम, वापी और दमन। तो ट्रेवल टाइम्स के हिसाब से अगर देखें तो इतने छोटे बेसिन में किसी तरह का मॉडल डेवलप करना और उस मॉडल से एक्यूरेट फोरकास्ट देना इतना ईजी आसान नहीं है, क्योंकि मॉडल वहाँ पर एक्यूरेटली काम नहीं कर पाएगा। कन्वेंशनल मेथड से अगर हम फोरकास्ट मधुबन साइट पर की है, जो की गई है, यहाँ पर एक मैप पे शो करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, येलो लाइन इज forecasted value and the other dark line is actual forecast. The actual forecast or forecasted value are almost same for मधुबन डैम। सेम तरह की सेम सिचुएशन हमारी जो है तापी बेसिन में भी देखने को मिलेगी। तापी बेसिन में अगर आप देखते हैं, यहाँ पर आप इसे देखिएगा इस पोर्शन पर, ये हमारा सूरत सिटी है, ये उकाई डैम है और यहाँ हथनू डैम है। पर्टिकुलरली तापी बेसिन दमनगंगा बेसिन से काफ़ी बड़ी है। इसका कैचमेंट एरिया भी नियर अबाउट 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। पर ट्रेवल टाइम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कंडीशंस डिफर हो जाती है, क्योंकि रिवर का जो नॉर्दर्न पार्ट है काफ़ी हिली है। ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं काफ़ी हिली पार्ट है, और यहाँ से जो भी बारिश होता है वो इंस्टेंट फ्लो का रिवर में आता है, जबकि वही पार्ट इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो काफ़ी स्लोपी है, लो लाइन है। तो यहाँ पर स्लोप कम होने के कारण फ्लो काफ़ी धीरे आता है। तो रिवर के एक साइड काफ़ी एक्सट्रीम फ्लो लेकर आता है, जबकि दूसरा रिड्यूस फ्लो लेकर आता है। ट्रेवल टाइम की बात की जाए तो हथनू डैम के लिए फोरकास्टिंग स्टेशन है आपका बुरहानपुर और ईयरली। ये दोनों फोरकास्टिंग स्टेशन से हथनू डैम की जो ट्रेवल टाइम होगा वो हार्डली 6 आवर्स होगा। तो ये भी काफ़ी शॉर्ट स्पेल फ्लड फोरकास्ट पीरियड हो रहा है। इसी तरह उकाई डैम के लिए जो फोरकास्टिंग बेस्ट स्टेशन है वो है गिधाड़े। गिधाड़े से उकाई का ट्रेवल टाइम भी 12 घंटे होता है। उसी तरह उकाई से सूरत का जो ट्रेवल टाइम होगा वो लगभग 8 घंटे होगा। तो रिवर बेसिन बड़ा है, लेकिन जो फोरकास्टिंग स्टेशन के लिए ट्रेवल टाइम है वो काफ़ी डिफर हो जाता है। मेन स्ट्रेस जो है इस पोर्शन में वो है उकाई डैम के लिए। उकाई डैम में ये हमारा उकाई डैम है। अब यहाँ पर फ्लड फोरकास्टिंग के लिए मेजर 2 तरह के इश्यूज हैं, जो हम किसी मॉडल में हम डाल नहीं सकते, क्योंकि मॉडल आपका जो फोरकास्टेड वैल्यू है उसको लेकर रन होगा। यहाँ पर हमारा बेस्ट स्टेशन यहाँ हमारा एक बेस्ट स्टेशन है, और बेस स्टेशन से रिजर्वायर के बीच में काफ़ी ट्यूबिटीज रिवर्स में आकर मिलती हैं, खासकर डायरेक्ट रिजर्वायर के कैचमेंट में। और अमूमन पिछले लास्ट 4-5 साल का जो ट्रेंड देखा गया है उसमें यही देखा गया है कि रिवर के राइट हैंड साइड और वेस्ट हैंड साइड से काफ़ी इंटेंस हैवी रेनफॉल होता है। यहाँ पर आपका सापुतारा रेंज की हिल्स आती हैं, जहाँ से डायरेक्टली जो छोटी मोटी रिवर्स हैं वो डायरेक्ट जो फ्लो लेकर आती है वो सीधा रिजर्वायर मिलता है। तो यहाँ इस पोर्शन में अगर बारिश होती है तो हमारे पास ट्रेवल टाइम हार्डली 2 to 3 आवर्स रहेगा।
इस पोर्शन में बारिश होती है तो वही 2 से 3 घंटे में पानी रिजर्वायर में आ जाएगा, तो ये 12 घंटे का ट्रेवल टाइम का जो हमारा क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर भी वर्क नहीं कर पाएगा। यही रीजन है कि इस पोर्शन में भी फोरकास्ट के लिए काफी इश्यूज आते हैं, और जो मॉडल बेस्ड फोरकास्ट है ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पर नहीं हो पाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ सूरत की बात करें तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सिंपल कोरिलेशन सूरत सिटी और उकाई डैम के रिलीज के ऊपर डिपेंड होकर बन सकता है, क्योंकि उकाई से डाउन स्ट्रीम में कोई भी मेजर रिवर्स नहीं है जो एडिशनल फ्लो रिजर्वायर में आए। मान लीजिए उकाई से अगर 2 लाख का डिस्चार्ज आया है तो सूरत में भी लगभग 2 लाख की जगह 2 लाख 10 या 2 लाख 20 हज़ार का डिस्चार्ज पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर होता है क्या है, यहाँ पर सूरत सिटी नियर द सी है, यहाँ तापी के कन्फ्लुएंस पर टाइडल इफेक्ट होता है। अब टाइडल इफेक्ट होने के कारण क्या होता है कि जो रिवर डिस्चार्ज लेकर आ रही है वो डिस्चार्ज या तो रिड्यूस हो जाएगा लो टाइड में, और वही अगर हाई टाइड होगा तो उस डिस्चार्ज को और बढ़ा देगा, उसे बैक करेगा। तो यहाँ पर भी मॉडल फोरकास्टिंग करने में कंफर्ट नहीं है, क्योंकि टाइडल इफेक्ट के कारण। तो जहाँ पर हमने तापी का, दमनगंगा का और राप्ती रिवर का देखा है पोर्शन, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं देख रहे हैं कि सभी जगह की सिचुएशन नॉर्मल कंडीशन से बिल्कुल अलग हो रही है। ट्रेवल्स टाइम्स हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है, और जो चैलेंजेस हैं वो अलग अलग डिफर्स हैं। जैसे कि सूरत में अगर देखें तो यहाँ टाइडल इफेक्ट का पोर्शन आ रहा है। उकाई में देखा जाए तो यहाँ पर रेनफॉल कंट्रीब्यूशन का अलग अलग पैटर्न आ रहा है कि इसका राइट बैंक में अलग रेनफॉल होता है, लेफ्ट बैंक में अलग होता है। और वहीं अगर हथनूर में देखा जाए तो हथनूर में भी सेम वही कंडीशंस आती है कि यहाँ पर हमारे पास जो बेस स्टेशन हैं उनका ट्रेवल टाइम काफ़ी कम है। मधुबन डैम में भी यही कंडीशन है कि काफ़ी फ्लश फ्लड आता है, कैचमेंट एरिया काफ़ी छोटा है और ट्रेवल टाइम कम है। राप्ती बेसिन में हमने देखा है कि जो ट्रेवल टाइम है वो कम है, और उसके साथ ही मेजर इश्यूज है इंटरनेशनल बॉर्डर्स का, जिसके कारण डाटा प्रॉपरली नहीं मिल पाता है और फोरकास्टिंग करने में कठिनाई आती है। तो फ्लड फोरकास्टिंग का जो मेजर पार्ट है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लड फोरकास्टिंग एडवांस वार्निंग है, इसके लिए बेसिकली जो 3 फैक्टर से डिपेंड करते हैं वो है, एक तो डाटा अवेलेबिलिटी, दूसरा है नॉलेज ऑफ फोरकास्टर, एंड तीसरा है फोरकास्टर फैमिलिटी विद द सॉफ्टवेयर। आपके पास डाटा प्रॉपर हो, आपका जो फोरकास्टर है उस बेसिन से अच्छी तरह अनभिज्ञ जानता हो, उस बेसिन को अच्छी तरह, उस बेसिन के बारे में काफ़ी उसके पास इंफॉर्मेशन है, और दूसरा उसके पास जो सॉफ्टवेयर या जो मॉडल यूज़ कर रहा है उसका उसको प्रॉपर नॉलेज हो। तो एज ए प्रेजेंटेशन ये छोटा सा पोर्शन मैंने आपको बताया है, प्रेजेंटेशन मेरा यह खत्म होता है। साथ में मैं आपको एक कंसेप्शन मेथड के लिए जो इजी एक हम जो ग्राफ क्या कहते हैं उसे कोरिलेशन कर्व डेवलप करते हैं, उसका एक छोटा सा आपको नमूना एक दिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि हमारी एक साइट है एल्गिन ब्रिज, और दूसरी साइट है अयोध्या। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कोरिलेशन ग्राफ डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम ले रहे हैं डाटा फ्रॉम एल्गिन ब्रिज और अयोध्या। हमारा यहाँ पर एल्गिन ब्रिज जो है वो बेस स्टेशन रहेगा अयोध्या के लिए। उसके लिए हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का डाटा शॉर्ट करते हैं।
और हमारा एक चार्ट तैयार होता है। यहाँ पर हमारे इस चार्ट से हम लोग एक जो पोर्शन रहेगा ये हमारा रहेगा एल्गिन ब्रिज का। सर दूसरा योर सर स्क्रीन आपकी विजिबल नहीं है सर। एक मिनट, दैट मीन्स मैं वापस स्टार्ट करता हूँ फिर से। हाँ हाँ यस सर। अभी विजिबल है? हाँ यस सर। ठीक है। नाउ नाउ विजिबल। ठीक है, तो मैं एक कोरिलेशन बना के बता रहा था कि किस तरह से हम लोग, हमारे पास डाटा अगर अवेलेबल है तो हम अप स्ट्रीम स्टेशन से दूसरे डाउन स्ट्रीम स्टेशन पर किस तरह से कोरिलेशन के लिए ग्राफ इजीली वे में बना सकते हैं। दैट मीन्स आप इस तरह से जो ग्राफ बनाएंगे वो आप हर रोज़ का ग्राफ बना सकते हैं, हर महीने का ग्राफ बना सकते हैं, ईयरली ग्राफ बना सकते हैं, और हिस्टोरिकल डाटा लेकर आप एक सॉलिड ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ मैं एक छोटा सा, ज़्यादा डाटा नहीं ले रहा हूँ, कुछ ही डाटा शॉर्ट करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर घाघरा रिवर के दो स्टेशन हैं, एल्गिन ब्रिज और अयोध्या। दोनों इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं। एल्गिन ब्रिज हमारा बेस स्टेशन है अयोध्या के लिए। तो ये पर्टिकुलर हमारे पास डेट का डाटा है और ये हमारी साइट से। तो शॉर्ट हम एक डाटा सेलेक्ट करते हैं एक रेंज के लिए। यहाँ पर हम एक जस्ट सिंपल स्कैटर्ड प्लॉट ले रहे हैं। तो हमारे पास ये जो डाटा सेलेक्ट किया है उससे हमारे पास एक ग्राफ तैयार हुआ। यहाँ पर हमारा एक साइड एल्गिन ब्रिज आएगा तो दूसरा अयोध्या होगा। इसके लिए अब इस ग्राफ में हमें एक ट्रेंड लाइन ऐड करनी है। ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई। तो इसी ट्रेंड लाइन के साथ इक्वेशन हम ले लेते हैं विथ आर स्क्वायर बेस। तो जैसा कि हम जानते हैं आर स्क्वायर हमारा जितना बेटर रहेगा हमारा जो कर्व होगा उतना फिटेड रहेगा। तो एक स्टेशन हमारा अभी ये हो गया है कि ये हमारा आर स्क्वायर हो गया है। या तो हम इस फार्मूले को डायरेक्ट पुटअप कर लें या फिर इसी डाटा को ग्राफ पेपर या चार्ट पेपर हम लोग प्लॉट कर लें। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे कि हमारा एल्गिन ब्रिज का लेवल है 103, 103 पर अयोध्या का क्या लेवल होगा, हम जस्ट इस लाइन को पिकअप करके इस पॉइंट पर आएंगे और यहाँ से अयोध्या का लेवल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक सिंपल मेथड है जिससे हम हमारे सिंपल डाटा से हम हमारा एक कोरिलेशन कर्व डेवलप कर सकते हैं। ये जो कर्व होगा हमारा है वो होगा गेज टू गेज कोरिलेशन कर्व। तो एक ये मैंने आपको गेज टू गेज कोरिलेशन कर्व बताया। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो PwC की जो फोरकास्ट है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। ये हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन का 3 डे एडवाइजरी प्लॉट फोरकास्टिंग मैनुअल है, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के लिए जो हमारे स्टेशन हैं उनके लिए हम फोरकास्ट इशू करते हैं। यहाँ पर इसे देखने के लिए जैसे कि हम टेबुलर व्यू में जाते हैं
तो यहाँ पर हमारे सभी साइट फोरकास्टिंग स्टेशन जितने भी हैं उन सभी के नाम हैं, जैसे कि 170 स्टेशन हमारे लेवल के लिए है और ये 135 स्टेशन हमारे इनफ्लो के लिए है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्टेशन पोलावरम, इसके लिए मॉडल बेस्ड रेनफॉल से फोरकास्ट जनरेट किया गया है मॉडल से। जैसे कि 1473 MCM में फोरकास्ट दिया हुआ है। डेट पर्टिकुलरली 3 डेज फोरकास्ट है, तो इस तरह से हमारा फोरकास्ट जनरेट होता है। अब यहाँ पर इशू वही आता है कि अलग अलग रिजर्व रिवर बेसिस में ये डाटा काम नहीं कर पाता है। जैसे कि अभी सरदार सरोवर डैम के लिए इन्होंने फोरकास्ट दिया है 217 MCM का, और एट प्रेजेंट सरदार सरोवर डैम के अंदर जस्ट 16 MCM पानी 16 MCM इनफ्लो आया हुआ है। तो ये जो मॉडल बेस्ड रेनफॉल है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपरली काम कर नहीं पा रहा है। रीज़न वही है, ट्रेवल टाइम शॉर्ट है। ये जो फोरकास्ट है 3 डेज के लिए है, तो 3 डेज के बीच में काफ़ी कुछ मूवमेंट हो जाता है जहाँ पर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इशूज़ की जाती है। इसी तरह यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लेवल फोरकास्ट है। लेवल फोरकास्ट ऑलमोस्ट 70 to 80% एरिया जहाँ पर किसी तरह का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स का इश्यूज नहीं आता या किसी तरह की डाटा की प्रॉब्लम नहीं आती, वहाँ पर फोरकास्ट ये मॉडल से काफ़ी बेटर हो रही है। मेनली वहाँ जहाँ ट्रैवल टाइम 24 घंटे और उससे ज़्यादा है। तो ये हमारा CWC का फोरकास्टिंग साइट्स है, जहाँ पर आप इनुंडेशन भी देख सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली कोई सा एरिया इनुंडेटेड हो रहा है तो उसके लिए भी हमारा यहाँ फोरकास्ट दिया जाता है। इसके साथ ही CWC का एक और हमारा वेबसाइट है फ्लड फोरकास्टिंग का, जहाँ पर करंट फोरकास्ट जहाँ पर हो रही है उनके बारे में डिटेल दिए जाते हैं पॉइंट वाइज। जैसे कि ये सारे ऑन द मैप दिखाई दे रहे हैं, ब्लू और ग्रीन, ये दोनों स्टेशन जो हैं, ब्लू स्टेशन आपका जो रहेगा वो इनफ्लो का है और ग्रीन आपका लेवल का है। और इनमें अगर जो कलर वेरिएशन आता है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं फोरकास्ट किस तरह से चल रहा है। तो अभी जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लाल बागी घाट, यहाँ पर आपका फोरकास्ट चल रहा है। येलो कलर है, दैट मीन्स ये यहाँ पर आपकी फोरकास्टेड वैल्यू है और ये अबाउ नॉर्मल कंडीशन में चल रही है। तो ऑल ओवर अभी द कंट्री में सिर्फ 3 ही स्टेशन है जहाँ फोरकास्ट चल रहा है। यहाँ आपका वार्निंग लेवल क्या रहेगा, डेंजर लेवल क्या है और प्रेजेंट वाटर लेवल क्या है, और जो फोरकास्टेड वैल्यू है वो राइजिंग है, फॉलिंग है, ट्रेंड आपको यहाँ पर शो मिलता है। सेम चीज़ को आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। पर्टिकुलरली आप बेसिन वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना तापी बेसिन, तो तापी बेसिन के जो स्टेशन होंगे उनकी लिस्ट आएगी और उन स्टेशन पर अभी क्या कंडीशन है आप एज ए ग्राफ वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ उकाई रिजर्वायर के लिए, तो ये उकाई रिजर्वायर का वाटर लेवल यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपको CWC की वेबसाइट्स पर फ्लड फोरकास्ट सारी मिल जाएगी, हाइड्रोग्राफ्स मिल जाएगी, इवन आपको 3D एडवाइजरी फोरकास्ट जैसे कि मैंने बताया वो मिल जाएगा, या इनुंडेशन मैप मिल जाएगा। जहाँ पर मैंने अभी बताया फोरकास्टिंग चल रहा था, वहाँ पर आप ये देखिए इनुंडेशन मैप दिया गया है कि इस पोर्शन में कितना एरिया इनुंडेटेड हो रहा है। तो इनुंडेशन मैप भी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी पर्टिकुलरली पोर्शन हमने आसाम वाले पोर्शन से स्टार्ट किया है। नाउ धीरे धीरे इसके बाद हम तापी बेसिन के लिए भी हम इनुंडेशन मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं। शुड बी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर से तापी बेसिन के लिए भी ये मॉडल हमारा रन करना स्टार्ट हो जाएगा। So Darshan, any questions for? Yes, sir. We have 2 to 3 questions in the chat box.
One question is that how much accurate is this conventional method compared to the remote sensing and the modeling based method of flood forecasting? रिमोट सेंसिंग है मॉडल बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशंस हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हम रिजल्ट देखा जाए तो मॉडल बेस्ड फोरकास्ट का रिजल्ट 60 to 70% के आसपास आता है। वही वहीं जबकि कन्वेंशनल मेथड का रिजल्ट 96 to 98% के बीच में आता है। तो शॉर्ट शॉर्ट स्पेल्स जहाँ पर है, ड्यूरेशन कम है, वहाँ पर कन्वेंशनल मेथड इफेक्टिव साबित होता है। Next question, how are travel times determined? ओके, ट्रेवल टाइम डिटरमाइन करने के दो फैक्टर्स हैं हमारे पास। पहले तो हमें देखना होगा कि सीवियरिटी ऑफ फ्लड उस एरिया में कितनी पड़ रही है। जैसे कि मैं आपको ऑन द मैप बताता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ये एक स्टेशन हमारा है बीके घाट। बीके घाट के डाउन स्ट्रीम में हमारी जो फोरकास्टिंग साइट है वो है एल्गिन ब्रिज, या फिर पास में आप ये दो साइड देखिए, ये आपका एल्गिन ब्रिज है और दूसरा है अयोध्या। ये दो बड़ी सिटीज़ हैं जिसके लिए हमें फोरकास्ट करना है और हमें ट्रेवल टाइम डिफाइन करना है। अब अगर हम चाहें कि हमें कोई ऐसा स्टेशन मिले जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम इसके लिए फोरकास्ट दे सकते हैं, तो हम ऑफकोर्स एलिगिन ब्रिज के अपस्ट्रीम में जाकर हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बीके घाट को। तो बीके घाट से अयोध्या के बीच का जो ट्रेवल टाइम होगा नियर अबाउट 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतने ह्यूज एरिया के अंदर अगर 48 घंटे के बीच में 2 दिन निकल आते हैं और 2 दिन में 2 बार बारिश हो सकती है। ठीक है, अगर 48 घंटे के बीच में अगर आपका फ्लो ज़्यादा अगर फ्लो हुआ तो आपकी जो फोरकास्ट आपने 48 आवर्स पहले दी है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए फोरकास्ट हम उस तरह से देते हैं ताकि फोरकास्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, जो आप लेवल दे रहे हैं वो आपकी साइट पर एक्यूरेट बराबर पहुंचे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवल टाइम रिड्यूस करेंगे। ट्रेवल टाइम रिड्यूस करने से फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी सुधर जाती है। अब एल्गिन ब्रिज से अयोध्या के बीच का जो ट्रेवल टाइम है वो नियर अबाउट 24 to 30 आवर्स का है। तो 24 आवर्स इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर टेक एनी नेसेसरी एक्शन। यहाँ पर हम लोग ट्रेवल टाइम किस तरह से अगर देखें निकालते हैं तो आप ये ग्राफ में समझ सकते हैं, ये वही से डाटा सेम है। ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। अब यहाँ पर जब हम ग्राफ की बात करते हैं कि हम किस तरह से ग्राफ जनरेट करें, तो जैसे कि मैंने आपको